महिमा लगने के लिए जिस तरह से हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने के बाद यूटिलाइज करते हैं, उसी तरह से मंत्रों की जो चैंटिंग है, मंत्रों का जो उच्चारण है, उससे मन निस्तब्ध होता है और उसी निस्तब्धि के बाद ही योग साधना धारण करने की शक्ति बढ़ती है। For the seekers, those who are seekers and those who are seeking for perfection in spiritual realization, along with pranayama, chantings have been prescribed, and chantings bring calmness to the mind, and when calmness to the mind happens, then yoga or meditation automatically happens. गुरु स्थान पे आने से जिस तरह से स्थान बना हुआ है, उस स्थान पे आने पे जो वहाँ पर ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उन सब की सामूहिक रूप से एक शक्ति बनती है और उस शक्ति के ऑरा में जब हम आते हैं तो वहाँ वैसे मन जो है शून्य पे आ जाता है। This is a Guru Pita, that means place of Guru. When we come here, there is a special aura or special energy in this place, and when we come together and when we come here, mind automatically comes to a state of meditation. शून्यता जो है वो भगवान का मूल रूप है। Completeness or emptiness is the essence of Brahman or God. जिस तरह से संसार में हर चीज पाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन अध्यात्म पाने के लिए 9 10 8 5 7 3 2 1 0। Like in the world, we generally go from 1 to 2 to 2 to 3, like that till 10. But for us to be spiritual, we have to return back from 10 to 9 to 8 to 7 and slowly towards 0. Amen. Because the zero, जब हम जीरो प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब मन के अंदर एक द्वंद्व आता है। उस द्वंद्व को दूर करना और आध्यात्मिक सीढ़ी की तरफ 1 2 3 करना, इसी के लिए गुरु की जरूरत है। The essence of or the need of Sri Guru is because when we come to zero, there is a confusion arises in mind, and to remove that confusion and so to rise in the step ladder of spirituality from 0 to 1 to 2 to 3, we need actually Sri Guru with us. Otherwise, it would not be possible. इसीलिए हम गुरु शरणागति होते हैं और गुरु की शरणागति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। जब हम शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, शरणागति के बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। Hence one need to submit to Guru or surrender to Guru. Once surrender happens, then an individual doesn't need to do anything. और जो समर्थ गुरु हैं, वो उसको छोड़ते नहीं हैं। उस स्थान पर उसकी जो भी पराकाष्ठा है, जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा है, उसके आसपास तक उसको ले जाते हैं और वो उसका स्पर्श कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। उसी साक्षात्कार को कुछ लोग जो है साक्षात्कार बोलते हैं, कुछ लोग उसको भगवान भी बोलते हैं। The true realized master will take the disciple to the highest point of realization, where there is vision of God. It is called also vision of God or realization of God, or it is also called finding God. और गुरु महाराज छोड़ते नहीं है, कराके छोड़ते। The realized master will never leave us. They will take us to the final destination. Then and then only they will leave us. They will not never leave us. इसीलिए सतगुरु की शरण में आने के बाद हम लोग निश्चित। Hence, we must be assured that we are at the feet of Sri Guru. As soon as we submit to Sri Guru, we are assured that we will be taken to the highest point. आप सब लोगों की साधना अच्छी है। ये हमें यहाँ आके बैठ के जो हमने हमारी मंत्रों की आवृत्ति करी, उस आवृत्ति से हमें जो यहाँ पर आभास हुआ, जो रियलाइजेशन हुई, आभास हुआ, उस रियलाइजेशन से इस जगह में भजन की आवृत्ति अच्छी हो रही है और भजन की आवृत्ति में जितने लोग भी जुड़े हैं, उन
उन सबके मन में भी जो है एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्राप्ति, क्योंकि प्रारब्ध में जो है अध्यात्म का, इसीलिए संत बनता नहीं है, संत बना हुआ आता है। Baba is telling is that he chanted some mantras and he felt that this place is spiritually charged, and those of us who are here, we are fortunate that we come to this place. And additionally, Baba is telling is that it is that we make ourselves rather than through practice we make ourselves, ये हमारा प्रारब्ध है। and this is our destiny also. और उसी प्रारब्ध के कारण से हुआ है। And we have come here because our destiny has brought us here, and we are also thankful that our destiny has brought us to your presence. हम आपके और आपको महाराज एक प्रश्न है, जैसे कि आप बोले कि संसार में हम 1 से 10 जाते हैं, अध्यात्म 10 से 1 आना, फिर 1 से अध्यात्म मार्ग में गुरु चाहिए, 1 से फिर 1, 2, 3 चाहिए, मगर 10 से जब हम 1 तक आते हैं वो भी गुरु चाहिए। वहाँ गुरु के बिना भी साधना हो सकती है, चाहिए वहाँ भी, वहाँ होने से जल्दी हम वापस आ जाते हैं जगह पे। लेकिन यदि वहाँ गुरु ना हुआ तो भी चलता है, लेकिन आध्यात्मिक प्राप्ति की तरफ जब जाना है तो गुरु चाहिए, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा द्वंद आता है। वो जो द्वंद को मिटाना और हमारे मन में संशय जो आता है कि प्रकृति है, ईश्वर है, ईश्वर की क्या, ईश्वर की गुण का आभास होता है, लेकिन ईश्वर का आभास नहीं। इससे भगवान राम हैं, उनके यही कारण है, यही गुण है, लेकिन नाम क्या है, उस चीज को जानने के लिए गुरु। So in general spiritual practice, part of the spiritual practice, one can put effort. It is possible, though with Sri Guru's blessings, that effort can be little bit smoothened. But nevertheless, at some point of time, there would be doubts. Especially, we can actually figure out the characteristics of divine, but it is extremely difficult to find what divineness is or God is. So at that point of time, to remove that doubt or confusion, Sri Guru is absolutely needed, and only through Sri Guru, understanding of God can come. That God is the subtlest of subtle, or atom point. Sri Gurudev called it atom point here. For that, Sri Guru's surrender or submitting to Sri Guru is necessary. और सुधान बाबा से सुधान बाबा लिखे, मैं बोला कि मैं क्या पूछना है, बोले कि उनसे दादा धुनी वाले दादा की जगह बारे में पूछना। वही मेरा प्रश्न है, वही पूछने वाला था आप थोड़ा आपके गुरु जी के बारे में। हमारे जो गुरु महाराज हैं वो हम लोग सैविक हैं, भगवान शिव को मानने वाले हैं, और एक हमारे जो गुरु हैं धुनी वाले दादाजी महाराज जी, नर्मदा जी जो हैं, नर्मदा खंड की परिक्रमा करते थे, और जो गौरीशंकर महाराज थे वो सन्यासी परंपरा से थे, और वो काबुल साइड के थे, पश्तो जो होते हैं पश्तो थे, तो वो संत बने। उनको ये मन था कि हमको भोलेनाथ की प्राप्ति हो, तो बहुत संतों के पास गए, बहुत आश्रम गए, सब दूर गए, लेकिन उनको कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन बद्रीनाथ जब गए तो बद्रीनाथ में उनको आवाज़ आई कि तुम्हारा गुरु ज्ञान हो तो तुम ढूंढ लेना। वो समझते थे हिमालय में ही मिलेंगे, कोई हिमालय भोलेनाथ का स्थान है, लेकिन उनको कहा, वहाँ आवाज़ आई बद्रीनाथ में कि तुम्हारे गुरु यहाँ हो तो ढूंढ लेना, नहीं तो हम तो नर्मदा खंड में हैं। अब उन्होंने कोई संतों से पूछा, कोई ना जानते नहीं कि वो रहने वाले काबुल के थे। उन्होंने कहा भाई नर्मदा खंड कहाँ है, तो संतों ने बताया कि नर्मदा खंड जो है नर्मदा जी के किनारे की दोनों तटों को बोलते हैं, उत्तराखंड दक्षिण तट दोनों
उम्र होने के बाद उनके मन में आया कि अपन संत बने और नर्मदाखंड भी आ गए, जवाई उनकी प्रतिमा भी लगा दी, लेकिन अभी तक प्राप्ति तो हुई नहीं। क्या किया जाए? इस बीच में उनकी 12 परिक्रमा लगाने की वजह से संतों की जमात उनके साथ हुई। उनकी जमात में 150 से 250 साधु भी हरदम रहते थे और उनका खाना बनाने वाले, सामान उठाने वाले, घोड़े वगैरह ऐसे करके बहुत बड़ा एक जमात होती है। गौरीशंकर जी महाराज मशहूर है तो वो, लेकिन उनके मन में फिर भी संताप नहीं हुआ। एक दिन उनका मन हुआ कि इससे तो अच्छे पूरा कर लेना की उम्र भी हो गई है। उन्होंने जो है रात को 4 बजे नहाने जाते थे, 3 बजे उठे। 3 बजे के मन में उनके ये रहा कि आज नहाने जाएंगे, नहाते नहाते जल में आगे बढ़ेंगे तो समाधि को उन्होंने नदी किनारे गए। जाने के बाद उन्होंने अपना जो है शरीर पूरा करने के लिए ये सोचा कि वो पानी बढ़े और बैठ जाएंगे, जल मगन हो जाएंगे। लेकिन पानी जो आगे बढ़े, पानी ज़्यादा बढ़ा नहीं। फिर एक छोटी सी कन्या 3 साल की लड़की उनकी ये उंगली पकड़ के ऐसे देखता कि क्यों पढ़ना चाहता है? उसने कौन है? बोले नर्मदा। बोले अच्छा डूबना चाहता है, मरना चाहता है, क्यों मरना चाहता है? उसने इसको कैसे पता नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। बोले तुम यहाँ कैसे हुई? रात को 3 बजे का नहीं यहाँ क्या कर रहे? बोले तुम कौन हो? तो बोले नर्मदा। बोले तूने 12 परिक्रमा लगाई है, तेरा तब इतना हो गया है कि तुझे प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा अच्छा कौन? बोले नर्मदा। बोले मैं ऐसे नहीं मानता, मुझे पूरे अपने रूप में दिखाओ। तो नर्मदा ने पूरे चतुर्भुज रूप में फिर उन्होंने बोला कि देख तेरी जमात में तेरी तपस्या से प्रसन्न होते और तुम सब साधुओं को लेकर चल रहे हो, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान भोलेनाथ तुम्हारे यहाँ केशव के रूप में, हमारी जमात में जो केशव है जो पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं तो हमारी जमात में और भंडार बनाते हैं, वो भोलेनाथ ये उनको बोला भाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं हुए तो बोले मुझे याद कर लेना, आ जाऊँगी। बोले तो वो वापस चले, मरना छोड़ा, वापस डेरे में आए। डेरे में जब आए तो सुबह केशव जी भंडार मारने के बर्तन मार गए। जैसे उन्हें बर्तन वहाँ से मारते उन्होंने कहा केशव जी, रोज इनको केशव बोलते थे लेकिन माई ने बता दी इसने कहा केशव जी। तो उन्होंने ऐसे देखा, जैसे ऐसे देखा तो उनका मुँह तो भगवान शिव की तरह दिखे और बाकी शरीर जैसा था वैसा दिखा। तो उन्होंने कहा कि ये मैं भ्रमित हूँ, कोई सपना देख रहा हूँ, ये क्या बात है? तो अब उन्होंने फिर आँख मछली देखा, जैसे उन्होंने भ्रमित होके देखा कि नहीं मैं भ्रमित नहीं, मैं तो यथार्थ हूँ। इतने में माई प्रकट हो। माई ने कहा क्यों तुम भ्रमित क्यों हो रहा है? तो बोले ऐसा लग रहा है मुझे भ्रमित तो नहीं। बोले नहीं भ्रमित नहीं है, छू के देख। तो इतने में वो बर्तन वहाँ छोड़ के ऐसे पद्मासन कर रहे थे। केशव जी पद्मासन पर जब बैठ गए तो उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके छू के उनको पूरे साक्षात्कार काफी देर आया हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम तुम्हारी जमात चलाओ, तुमने हमें पहचान लिया, हमने तुम्हें पहचान लिया। बोले हम तुम्हारी प्रसन्नता से प्रसन्न थे, इसलिए हम जमात में सबको भोग लगा खिला रहे थे। अब तुमने हमें पहचान लिया, हमने तुम्हें पहचान लिया, अब तुम तुम्हारे संतों की जमात लेके जाओ। गौरीशंकर महाराज बोले जमात लेके जाओ। और वो जो बर्तन मान जो केशव जी थे जिनने शिव रूप में दर्शन दिए, वो जंगल में दौड़ गए। और वो जंगल में दौड़ने के बाद में एक सैकड़ा एक स्थान हमारा पुराना स्थान है, वहाँ पे वो बच्चों को डंडा मारना, पत्थर मारना और बस ऐसे उसकी लीला करते और उसी से सब पकड़ लिया। वही फिर बाद में जो है सब लोगों ने बाद में भी सुनते दादा दादा के नाम से जो धुन लगाया धुनी लकड़ी लिया है, धुनी लगा दी, धुनी लगने जिसको डंडा मारे उसको कल्याण हो जाए, जिसको गाली बक दें उसका काम हो जाए। ये जो कुलपति थे बीएचपी के अपने वाराणसी के अपनी जो काशी विश्वविद्यालय PhD थे, तो उनके जो कुलपति थे उन्होंने ये बात सुन के उनको लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गाली बके
डंडा मारे और उससे जन कल्याण हो जाए, उससे सब हो जाए। तो उनके मन में ये बात हजम नहीं है। वो आए वहाँ आके 1-2 दिन तो वो दूर खड़े रहे थे, डंडे से भी डर लगता था, डंडा मार देंगे। दूर खड़े खड़े देखते रहे, और जो उन्होंने सब देखा, देखने के बाद उनको फिर पास में गए, प्रणाम करने के राजी ने उंगली पकड़ के डंडा मारने की क्या, फिर डंडा रख दिया। उनको फिर पूरा जो संहिता है, संहिता में 40 अध्याय है, पूरी संहिता उनको सुनाई। जब उनको लगा कि नहीं तो परम ज्ञान नहीं, लेकिन ये ज्ञान की पराकाष्ठा से ऊपर हो गए हैं, इसलिए उनको गाली और ज्ञान का एक ही रूप है। इसीलिए इनकी गाली उठने से और मारने से कल्याण होता है, ये उनको समझ आ गया। फिर उन्होंने जाके काशी शहर से सर्टिफिकेट भी भेजा कि उन्होंने कहा कि ये तो जो है जो अपने आप ही PhD हो गए, तो उन्होंने वो ज़्यादा डिग्री PhD दे सकते थे, तो उन्होंने PhD की डिग्री वहाँ से भेजी। दादाजी धोनी में हवन कर रहे थे, हवन करते करते और लेके आया, तो 2 दिन से बोल रहे मोड़ा हमारे लिए मोड़ा हमारे लिए परीक्षा में पास होने की डिग्री ला रहा है, मोड़ा हमारे पास होने की डिग्री ला रहा है, ऐसे बोल रहे थे। और जो आदमी उनका लेके आया, वो प्रोफेसर जब लेके आया, दादाजी को कहा कि ये कुलपति जी ने भेजी है डिग्री आपकी, तो हम बोले धुनी छोड़ दो, हमारा खजाना ये है। बोले हम हमारे खजाने जमा करते हैं, तुम्हारी डिग्री हमारे खजाने में जमा हो गई, और फिर दादाजी छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि वो भी देख के हैरान कि इतनी लोग डिग्री पाने के लिए बरसों लगे रहते हैं, और नहीं जाना। जब उसको भी आभास हुआ कि इनके लिए डिग्री का महत्व नहीं, ये उसकी पराकाष्ठा से ऊपर है, और फिर उसने भी जो खेल देखा, तो उसी तरह से जब वो भगवान छूट के, तो उसी तरह से हम हमारी कई परंपरा, हमारे जो हमारे गुरु महाराज तीसरी पीढ़ी, उनको भी दादाजी ने शिव रूप में दर्शन दिए। तो उन्होंने दुनियाल दादाजी ने कई को शिव रूप में दर्शन, किसी को सपने में दिए, किसी को साक्षात हुए। इसलिए हम लोग उसी परंपरा से उनको शिव रूप में मानते हैं, शिव रूप भी कोई अंश होता है। So Baba told a beautiful story. It is a little long, but I will shorten it. There was a great man. He went to Himalayas to look and find Lord Shiva, and somebody told him to go to down in the middle of India. There is a place called Jabalpur where Mother Narmada flows. Narmada is a river considered the holiest river, one of the holiest river in India, and she is considered as the daughter of Lord Shiva. So he came, and somebody told him that you have to go around, because there is a tradition that you have to go around the river Narmada. It takes 3 years, 3 months and 13 days to do one round. He did 12 rounds. 40, it took him 40 years, and when he was in 70s, a doubt came to his mind that I have been doing this, going around the river for 12 years, for 12 times, but I haven't seen Lord Shiva. So then he decided that it is not worth to live a life, then I will go to the river and take what we call Jala Samadhi. I will leave my body in the river. So one day in the morning, he generally wakes up at 4 o'clock. He got up at 3 o'clock and then started entering the river. And suddenly, he was entering to the river, and the water was not coming up. And he suddenly saw the 3-year-old girl is trying to hold his little finger and then trying to pull. He said, "Who are you?" She said, "I am Narmada." She said, "I don't trust it." Then she came in the form of real form, which is actually a form of Shiva only. Narmada looks like Lord Shiva's daughter, so she looks like Lord Shiva. So she said, "You are looking for Lord Shiva, but Lord Shiva is actually going around with you for last 3 years as your cook." Because when they were moving, there are around 200 to 250 monks were moving with him. So his name was Keshav. So this monk went to the kitchen and saw that this person Keshav is cleaning a pot. And he called him Keshavji. Keshavji means respected Keshav. And when Keshavji looked towards him, he saw Lord Shiva in him. So he was not sure. And then he tried to put his eyes, and he said, "Maybe I'm dreaming or I'm hallucinating." And then he tried again and again.
and then Mother Narmada came in her form, and Lord Shiva also came in his form, and then blessed him. He said, "You continue, I gave you darshan." And then Lord Shiva left to the forest as Keshav. And there he started blessing people through different means, very unusual means. Like he will throw some stones, he will throw some not so used languages or words. And when a great scholar from one of the universities called Banaras Hindu University came to know about it and came to check on him. So one day he came and he looked at him and he found him that he is not ordinary, he is a great man. When he touched him, he told him, there is a scripture called Samhita, 40 verses of the 40 books of Samhita, he said. Then this person realized that he is a great man. So he was the vice chancellor, considered the highest post in the university. So he wrote a special accreditation that he is the greatest knower of spiritual text. When he gave that accreditation, or it's called a doctorate certificate, he threw it in the fire, saying that this is my treasure, the fire is my treasure, all my knowledge comes from that, all my knowledge goes there. So, and from there onwards, he was called as Dhuni Wala Baba. Dhuni means fire, Baba means great man or fatherly, or father who is recognized from the fire. Baba comes from that tradition. That Dhuni Wala Baba is Lord Shiva. So Baba comes from the tradition of Lord Shiva. We also come from tradition of Lord Shiva. And Baba's Sri Guru, Bade Sarkar Maharaj, actually has darshan of Lord Shiva. And Baba is not saying Baba also has darshan of Lord Shiva. So we are fortunate is the less word, we are blessed. And it is our destiny, as Baba said, that even in this cold weather, some of us have come here to get his blessings. हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन हुआ, आप इस ठंडे में उधार है। गुरु परंपरा में बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने वाला मिल जाए। सब आध्यात्मिक उससे हैं तो आध्यात्म से आध्यात्मिक को पकड़ा रहता है। Baba said a nice joke. He said, I will translate. He said, those who smoke, they find another smoker in a very natural way. So it was a blessing. It was only his blessing for us that only spiritual people get attracted to. All of us, we are spiritual seekers here, and it is only he, through his blessing, that is telling that that we are spiritual seekers. But truly, we are fortunate. Some of us come from different parts of USA. Some दूर से आए हैं. हमारा एक प्रोग्राम आरंभ हो रहा है जी हमारा 5 जगह आश्रम है गुरु महाराज जी की. फ्लोरिडा में मदर सेंटर है, यहाँ पे एक है, डेनवर एक है, वहाँ पे एक है, सियाटल में और टेक्सास में माँ लोग रहते हैं और गोमाता भी है उधर. डलस के पास, डलस से 4 घंटा लगता है. ह्यूस्टन ऑस्टिन के बीच में, ह्यूस्टन के पास और शिकागो में. हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है महाराज जी, आज शाम से आरंभ होगा. 6 दिन का प्रोग्राम है. उस प्रोग्राम में पूर्ण शांत रहेंगे और दिन में 6-7 घंटे का ध्यान का व्यवस्था है और केवल खिचड़ी का व्यवस्था रहेगा. केवल खिचड़ी खाएंगे लोग और ध्यान करेंगे. तपस्या सप्ताह उसका नाम है. कोई भी दिन भर ध्यान कर सकता है, लेकिन मिनिमम 5 घंटे का ध्यान है और थोड़ा सा चैंटिंग रहेगा शाम को.